students, this is Dr. Anit Gumbar from Premier Academy, Bilaspur, NEET, IIT JEE and Foundation. So, in today's lecture students, we are going to deal with a very important topic जिसमें बहुत से students को बहुत सारा doubt भी होता है, especially यहाँ पे जो लिखा है that is the cardiac cycle. So, today we are going to start with body fluids and exchange part 1, that is human heart and cardiac cycle. But before starting with the cardiac cycle, let's understand how this human heart works, इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इस कार्डियक साइकिल को पॉसिबल करने में हेल्प करेगी. सो लेट्स स्टार्ट with the human heart. Now, you know that human heart is a part of human circulatory system. It is a part of human circulatory system, which is also known as blood vascular system. Blood vascular system, we have two kinds of system for circulation of fluid in our body. एक जो सिस्टम होता है वो ये है, that is your blood vascular system, जिसके थ्रू क्या सर्कुलेट होता है बॉडी में, दैट इज ब्लड. एंड द अदर सिस्टम इज योर लिम्फेटिक सिस्टम. द अदर सिस्टम इज लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके थ्रू कौन सा फ्लूइड सर्कुलेट होता है, दैट इज लिम्फ. सो ब्लड एंड लिम्फ, दीज आर द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, जो हर जगह सर्कुलेट होते हैं वाया द वेसल्स known as blood vessels, और lymph किसके थ्रू सर्कुलेट होगा, that is your lymphatic vessels. किसके थ्रू सर्कुलेट होगा, via lymphatic vessels. and इस ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो ब्लड को हर एक सेल, हर एक ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए एक पंपिंग, and that pumping mechanism is nothing but heart. That is nothing but heart. So, in short, अगर हम बोलें तो we have two kinds of system in our body. One is your blood vascular system, one is your lymphatic system. We are not going ahead with this topic. This lecture we are going with the heart, human heart and cardiac cycle. So, we are dealing with the blood vascular system, जिसके तीन main parts हैं. एक है muscular chambered heart, because heart is made up of nothing but it is made up of muscles, muscular chambered heart. and heart से क्या आता है, heart में enter भी blood vessels होंगे और उसके बाहर भी blood vessels जाएंगे, which will circulate what, the fluid blood. So here in the diagram also you can see heart with its blood vessel containing the blood. Now let's go ahead with directly to the main topic, that is your human heart. Very important. You know that there are 3 germ layers in the body, जिससे सारे organs develop होते हैं, that is your ectoderm, mesoderm and endoderm. ectoderm, mesoderm and endoderm. तो अगर हम human heart की बात करें, so human heart is mesodermally derived organ. कौन सा organ है, किससे derive हो रहा है, it is derived from mesoderm. And its location, it is located in the thoracic cavity. What is the thoracic cavity? That is this cavity, the upper body cavity. यहाँ पे आपका एक muscular organ होता है, which is known as diaphragm, this area. और diaphragm के ऊपर के जो भी cavity होती है, that is known as thoracic cavity. This is your thoracic cavity. And this is the abdominal cavity. This is the abdominal cavity. और ये दो cavities को कौन separate करता है, it is separated by diaphragm. It is separated by diaphragm. So we have 2 cavities, that is thoracic cavity and abdominal cavity. तो heart कहाँ lie करता है, heart lies in the thoracic cavity, in between the 2 lungs. In between the 2 lungs, ये है आपका right lung, this is your left lung. And यहाँ पे हमारा heart located होता है in the thoracic cavity between the 2 lungs. और ये जो space होती है 2 lungs के बीच में,
जिसमें हार्ट लोकेटेड होता है, दैट इज नोन एज mediastinum. It is known as what? Mediastinum. So heart is located in what cavity? Thoracic cavity. Between the two lungs, slightly tilted towards the left. आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो लेफ्ट लंग है, यहाँ पे लेफ्ट लंग में एक नॉच है, एक नॉच है. दिस नॉच is known as cardiac notch. This notch is known as cardiac notch, जो heart को accommodate कर रहा है. So heart is tilted towards the left side. Heart किस तरफ tilted है? Towards the left side in the cardiac notch, in between the two lungs. और ये जो lungs के बीच का space होता है, that is known as mediastinum, and the overall cavity is known as thoracic cavity. I hope it is very very clear. Then what is the size? हार्ट का साइज सिर्फ ये जो एक क्लेंच्ड फिस्ट, इट इज़ लाइक अ क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब ये जो बंद मुट्ठी है, बस उसके साइज का हार्ट होता है. एंड if we talk about the coverings, so heart is protected by a doubled walled membranous bag known as what? Pericardium, जिसमें क्या फ्लूइड रहेगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड. तो जो हार्ट है वो किससे कवर्ड है? वॉल से कवर है. दैट वॉल इज अ मेम्ब्रेनस वॉल एंड इट इज डबल लेयर्ड, और उसके बीच में क्या फ्लूइड होता है? पेरिकार्डियम. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द walls of heart and its covering. Do not get confused with the walls and its covering. See, this heart has, let me check if there is some empty space. Yes, in this slide. So let's see, अगर हार्ट है तो हार्ट की हम कवरिंग को इनर टू आउटर जाएंगे. कैसे जाएंगे? इनर टू आउटर. ठीक है. सो सबसे इनर जो वॉल होती है दैट इज एंडोकार्डियम. दैट इज व्हाट? एंडोकार्डियम. देन सेंटर में एक थिक वॉल होती है, थिक वॉल होती है सेंटर में. दिस इज योर मायोकार्डियम. दिस इज द थिकेस्ट ऑफ ऑल. दिस इज द थिकेस्ट ऑफ ऑल. नाम से समझ में आ रहा है, मायो मतलब किससे बनी है? इट इज मेड अप ऑफ नथिंग बट कार्डियक मसल. दिस मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल. एंड इसके अंदर, इसके बाहर एक और लाइनिंग होती है विच इज नोन एज योर एपीकार्डियम. विच इज नोन एज एपीकार्डियम. इट इज नोन एज व्हाट? एपीकार्डियम. तो सबसे पहले अगर मैं वॉल की बात करूं तो इनर मोस्ट जो हार्ट की लाइनिंग होती है, इनर मोस्ट हार्ट की जो लाइनिंग है दैट इज एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम के बाद मायोकार्डियम. मायोकार्डियम के बाद आता है एपीकार्डियम. क्या आता है? एपीकार्डियम. एंड उसके बाद आपका जो हमने यहाँ पे लाइन पढ़ी कि हार्ट इज कवर्ड बाय अ डबल्ड वॉल्ड मेम्ब्रेन नोन एज व्हाट? पेरिकार्डियम. तो पेरिकार्डियम इसके बाद आएगा. और पेरिकार्डियम की दो लेयर होती है. एक होती है आपकी सेरस लेयर और एक होती है आपकी पराइटल. एक होती है आपकी फाइब्रस लेयर. तो ये जो एपीकार्डियम है, दिस इज visceral pericardium. This is visceral pericardium of serous part. तो एपीकार्डियम हो या विसरल पेरिकार्डियम हो, एक ही चीज है. उसके बाहर आपकी होती है पराइटल पेरिकार्डियम ऑफ सीरस पार्ट. और इसके बाहर अब होता है आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम. इसके बाहर आपका क्या होता है? फाइब्रस पेरिकार्डियम. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द वॉल्स विद द लाइनिंग.
These are the linings of heart. सबसे अंदर होता है आपका एंडोकार्डियम, फिर आता है आपका मायोकार्डियम, फिर आता है आपका एपिकार्डियम. एंडोकार्डियम एपिथेलियल लाइनिंग है, एंडोकार्डियम एपिथेलियल लाइनिंग है, मायोकार्डियम मसल की लाइनिंग है, एपिकार्डियम अगेन एपिथेलियल लाइनिंग है. And this epicardium is nothing but visceral pericardium of serous part, है ना. उसके बाद आपका आता है parietal pericardium और लास्ट में आपका आता है fibrous pericardium, जो fibrous membrane से बना हुआ है, जो हार्ट को एक्चुअल हार्ट और उसके blood vessels को क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन. So if you want you can just note it down, it's a very very important point. I hope it is very very clear. Do not get confused with the linings to the walls. सबसे अंदर endocardium, फिर myocardium, epicardium. Epicardium is nothing but visceral pericardium of serous part. Then there is parietal pericardium of serous part. And last में जो सबसे हार्ट के बाहर जो कवरिंग होती है वो होती है fibrous pericardium. वो होती है fibrous pericardium. और ये जो दो linings हैं, that is your visceral pericardium and parietal pericardium, इनके बीच में प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड. इनके बीच में प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड विच इज 10 to 50 ml, विच प्रिवेंट्स हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है तो उसमें जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उससे वो उसको बचाता है. सो पेरिकार्डियल फ्लूइड किसके बीच में प्रेजेंट है, यहाँ हमने देखा था कि जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पेरिकार्डियम. तो कौन से पेरिकार्डियम के बीच में, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द विसरल पार्ट एंड parietal part. It is present between the visceral part and parietal part of pericardium. Visceral part and parietal part of pericardium. So I hope this is clear. Please note it down. This is the thickest layer, myocardium, which is actually made up of cardiac muscle. जो हम कहते हैं heart is a muscular organ. So this is a very very important lining जो actually पूरा contraction और relaxation का काम करती. That is your myocardium. This is made up of cardiac muscle, endo, myo, epi, parietal pericardium and fibrous pericardium. So these are the linings and walls of heart. So we'll just have a quick revision. Heart is mesodermally derived. Thoracic cavity में present होता है. यहाँ पे in between the two lungs थोड़ा सा लेफ्ट तरफ tilted रहेगा और जो लेफ्ट लंग में क्या प्रेजेंट होता है, कार्डियक नॉच. वहाँ पे ये हार्ट प्रेजेंट रहता है एंड द स्पेस बिटवीन टू लंग्स इज नोन एज मेडिएस्टिनम. साइज एक क्लेंच्ड फीस्ट की तरह है एंड वॉल्स के बारे में अभी हमने डिटेल देखा है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट, हम कहते हैं कि हार्ट इज अ मस्क्यूलर चेम्बर. तो चेम्बर है मतलब उसमें काफ़ी सारे हैं, बॉक्सेस हैं. So heart has how many chambers? It has 4 chambers. Heart has how many chambers? 4 chambers. ये बेसिक तो आप सबको पता है, आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि हार्ट जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 upper chambers known as atria and 2 lower chambers known as ventricle. Atria size में छोटे हैं. This is right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. So the upper small chambers are atria और auricles भी बोलते हैं उसको, atria or you can call it as auricles. And the lowermost are, the lower chambers are right ventricles and left ventricles. ये थोड़े से larger chambers होते हैं. Here also you can see the right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. Now
हियर यू कैन सी कि ये पूरा एक सेप्टम है, बीच में ये पूरा सेप्टम है। तो ये जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, इनके बीच का जो सेप्टम होता है दैट इज नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम। इट इज नोन एज व्हाट? इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इंटर एट्रियल सेप्टम किसको सेपरेट कर रहा है? राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। वेयर एज दिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये कौन सा सेप्टम है? इंटरवेंट्रिकुलर, नाम इंटर-एट्रियल between the two atria and interventricular between the two ventricles, ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, आप शॉर्ट में इसको IAS भी बोलते हो या फिर IVS भी बोलते हो, ठीक है। नाउ नीट एस्पिरेंट्स प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो सेप्टम्स होते हैं ये मस्कुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मेड अप ऑफ थिन मस्कुलर टिश्यू एंड दिस इज मेड अप ऑफ थिक मस्कुलर टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनकरेक्ट में कुछ भी नहीं करेगा, इस थिन और थिक को जस्ट ऑपोजिट कर देता है। तो ये जो इंटरएट्रियल सेप्टम है ये भी मस्कुलर है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी मस्कुलर है, बट ये थिन है और ये थिक है। नीट एस्पिरेंट स्पेशली ध्यान देंगे थिन एंड थिक, क्योंकि आपको पता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट पॉइंट्स को बस थोड़ा सा चेंज कर देता है और हम ध्यान नहीं देते हैं। वेयर एज नाउ हियर यू कैन सी कि अगर ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है, तो एक तरफ का, अगर मैं राइट तरफ की बात करूं तो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल भी आपस में सेपरेटेड है और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स भी आपस में सेपरेटेड हैं। तो सेम साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल आपस में कैसे सेपरेटेड है? बाय AVS, दैट इज नोन एज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो किससे बना है? फाइब्रस टिश्यू से। किससे बना? थिक फाइब्रस टिश्यू से। हमने यहाँ देखा IAS बना है थिन मस्कुलर टिश्यू, IVS इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है वो बना है थिक मस्कुलर टिश्यू, और जबकि ये जो सेप्टम है दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो सेम तरफ के एट्रिया और वेंट्रिकल्स है, इधर राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकुलर, इनको जो सेपरेट कर रहा है वो किससे बना है? फाइब्रस टिश्यू से बना है एंड इट इज नोन एज AVS, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर। सो वी हैव द चेम्बर्स ऑफ हार्ट is divided by 3 septums: interatrial, interventricular and atrioventricular septum. I hope this part is very much clear. I hope this is very much clear and you should always note down each and every point. आप आराम से एक बार लेक्चर को समझने के बाद इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स है वो क्या क्या चीज़ें रिसीव कर रहा है या क्या चीज़ें, कौन से ब्लड वेसल रिसीव कर रहा है और कौन से ब्लड वेसल दे रहा है। सो लेट्स, चलो ह्यूमन हार्ट, एक बड़ा सा मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ of a human heart. This is a very explanatory diagram. This is a very explanatory diagram. आप सब बना लेंगे इसको. You know this is right atrium. This is left atrium, left right ventricle, and this is your left ventricle. Interatrial septum, interventricular septum, atrioventricular septum. Now, एट्रिया का काम होता है या ऑरिकल का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। क्या काम होता है? ब्लड को रिसीव करना। और वेंट्रिकल्स का काम होता है ब्लड को हार्ट से बाहर भेजना, ब्लड को हार्ट से बाहर भेजना, ठीक है। तो हमको पता है कि आपने कोई भी चीज़ खाई, फॉर एग्जाम्पल आपने
स्टार्च लिया, दैट इज ब्रोकन डाउन इन योर बॉडी इन ग्लूकोज, वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ और उसने क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके बॉडी में आपको ऑक्सीजन पहुंचाना है वाया दी ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड उसी ब्लड के थ्रू कहाँ आएगा, लंग्स में आएगा, और लंग्स से आप बाहर उसको एक्सहेल कर देंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ज़्यादा अमाउंट में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है ज़्यादा अमाउंट में। तो जो हमारा हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर पंप करता है, ताकि सारे सेल्स और ऑर्गन्स तक क्या पहुंच पाए, ऑक्सीजन। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे सेल्स और ऑर्गन से कहाँ आता है, टुवर्ड्स दी ऑरिकल। सो हियर इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हार्ट है एंड दीज आर दी बॉडी पार्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे लंग्स बताया गया है। तो ये जो बॉडी पार्ट्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन पंप कर रहा है, ये बॉडी पार्ट्स है, ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी पार्ट्स यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, तो ये वाया ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स, और लंग्स के थ्रू कहाँ हो जाएगा, एक्सहेल। ठीक है, तो अब कैसे होगा कि ये जो ऑरिकल्स है आप देख सकते हो, ये CO2 वाला ब्लड, मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको रिसीव कर रहा है। ठीक है, सो राइट ऑरिकल रिसीव्स ब्लड, राइट ऑरिकल विल रिसीव ब्लड फ्रॉम veins. You know that veins carry deoxygenated blood and artery carries oxygenated blood. Veins क्या carry करता है, deoxygenated blood, artery carries oxygenated blood. There are few exceptions which I'll be telling you later on. तो right auricle receive कर रहा है, ये 3 वेन्स हैं, 3 वेना केवा है, वेना केवा मतलब बड़ी वेन्स, वेना केवा मतलब बड़ी वेन्स। तो राइट ऑरिकल 3 वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। किससे किससे, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, फर्स्ट इज सुपीरियर वेना केवा, फर्स्ट इज सुपीरियर वेना केवा। अलग कलर से इसको मार्किंग कर देते हैं, ब्लू ले लेते हैं कलर, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये रिसीव कर रहा है। ठीक, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर पर्पलिश ब्लू होता है। सो दिस इज योर सुपीरियर वेना केवा, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी। देन दिस इज योर inferior, this is inferior vena cava, it receives blood from lower parts of body, it receives deoxygenated blood from lower parts of body. And this part is your coronary sinus, this part is your coronary sinus. deoxygenated blood हार्ट itself से रिसीव करेगा। भाई हार्ट भी तो वर्किंग कर रहा है, तो हार्ट को वर्किंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अगर वो ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है तो दैट मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर रहा है। तो हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, फ्रॉम द कोरोनरी साइनस। तो जितना भी अपर पार्ट ऑफ हमारा बॉडी है उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा से आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी इज रिसीव्ड बाय इंफीरियर वेना केवा, and deoxygenated blood from heart itself is received by coronary sinus। ठीक है, then ये ब्लड राइट ऑरिकल से कहाँ पंप होगा, राइट वेंट्रिकल्स में। कहाँ पंप होता है, राइट वेंट्रिकल में। एंड राइट वेंट्रिकल से आपका क्या जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी। मैंने आपको अभी बोला था कि आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
there is an exception and that exception is pulmonary artery. ये जो pulmonary artery है ये deoxygenated blood कहाँ लेके जा रही है? lungs में. कहाँ लेके जा रही है? lungs में, ताकि वो क्या कर सके? CO2 lungs के बाहर दे सके और O2 को वापस ला सके. ठीक है. सो ये जो deoxygenated blood है ये रिसीव किसने किया? राइट ऑरिकल ने. राइट ऑरिकल से कहाँ गया ये ब्लड? टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल्स. नाउ फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी it is the blood is taken towards the lungs. कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करेगा? deoxygenated blood. तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा ब्लड? लंग्स में. अब ये क्या कैरी कर रहा है? CO2. तो लंग्स से, लंग्स को इसने CO2 दिया एंड वाया योर ब्रीदिंग प्रोसेस ये CO2 लंग से बाहर आपका टुवर्ड्स ब्रोंकाई, ट्रेकिया और आप वापस नॉस्ट्रिल से इसको क्या कर देते हैं? एक्सेल. क्या कर देंगे? एक्सेल. और आप इनहेल क्या करेंगे? ऑक्सीजन. आपने क्या इनहेल किया? ऑक्सीजन. व्हाट डिड यू? ऑक्सीजन. अब ये ऑक्सीजन वाया लंग से वाया पल्मोनरी आर्टरी कहाँ आएगा? टुवर्ड्स दी लेफ्ट ऑरिकल. तो जो लेफ्ट ऑरिकल है वो क्या रिसीव कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया हाउ मेनी वेन्स? हियर यू हैव सीन आई एम मेकिंग 4 पल्मोनरी वेन्स. 4 पल्मोनरी वेन्स. तो यहाँ ये जो पल्मोनरी वेन है ये क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अगेन एन एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि arteries carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood, but these artery and veins are the exception, क्योंकि pulmonary artery जो है वो क्या कैरी कर रही है? deoxygenated blood. और pulmonary vein क्या कैरी कर रही है? oxygenated blood. So I hope यहाँ तक क्लियर है. जो भी बॉडी पार्ट्स में आपका फूड जो ग्लूकोज है जब ऑक्सीडाइज हुआ या फूड ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड. दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गिवन टू हार्ट वाया these 3 vena cava, superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus to right auricle. और राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल. ये अभी भी डीऑक्सीजनेटेड है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? टुवर्ड्स द लंग्स. लंग्स में आपको पता है आपने CO2 एक्सेल कर दिया और आप क्या इनहेल कर रहे हैं? ऑक्सीजन. तो वो ऑक्सीजन कहाँ गया? लंग्स में. लंग्स से क्या आ रहा है? पल्मोनरी. तो वो क्या कर रही? कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये पल्मोनरी वेन अब कहाँ अपना ब्लड दे दी? लेफ्ट ऑरिकल में. And from here the blood is pumped to left ventricles. It is pumped to left ventricle. Now from left ventricle there is what? Aorta. From left ventricle क्या आता है आपका? Aorta. Left ventricle से आपका कौन सा blood vessel आया? The largest blood vessel, that is your aorta. यहाँ से आप देख सकते हो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहाँ से क्या आया? आयोटा. दीज आयोटा इज देन डिवाइडेड इनटू many arteries and these arteries are divided into arterioles. From arterioles it is divided into capillaries. और यहाँ पे आप देख सकते हो via capillaries the oxygen is provided to the different cells or organs of our body. तो aorta is divided into arteries, arteries into arterioles, arterioles into capillaries. तो ये जो aorta है ये क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजन. देन ये कैपिलरीज ने ऑक्सीजन किसको दे दिया? टू दी बॉडी सेल्स. ठीक है. यहाँ से ऑक्सीजन ने मेटाबॉलिज्म किया. यहाँ क्या रिलीज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड. दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप बाय अगेन कैपिलरीज एंड कैपिलरीज के बाद यहाँ पे क्या आएगा? देयर विल बी वेन्यूल्स. वेन्यूल्स से क्या बना? वेन्स. और वेन्स से क्या बना? वेना केवा. वेन से क्या बना?
vena cava. So this mechanism you have to understand very, very carefully to understand the cardiac cycle, to understand the cardiac cycle. तो एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे बता रही हूँ, this mechanism you have to understand very, very carefully. These are the four chambers of heart. These are the four chambers of heart. Right auricle, left auricle, right ventricle, left ventricle. The auricles receives the blood and the ventricles pumps out the blood. Right auricle जो है वो deoxygenated blood receive करता है via superior vena cava, upper part of the body, inferior vena cava, lower part of the body, and coronary sinus from the deoxygenated blood from heart itself. Given to right ventricle. From right ventricle there is pulmonary artery. ये pulmonary artery deoxygenated को कहाँ लेके जाएगा? lungs. lungs से CO2 आप exhale कर दोगे और आपने क्या inhale किया? ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन via pulmonary vein कहाँ आएगा? left auricle. So left auricle receives oxygenated blood via the four pulmonary veins which are given to left ventricle, and from left ventricle आपका क्या आ रहा है? aorta. क्या आ रहा है? aorta. ये aorta जो है ये बहुत सारे छोटे छोटे आर्टरीज में डिवाइड होगा. देन ये आर्टरीज उससे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगी, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज. वाया कैपिलरीज दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गिवन टू बॉडी सेल्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड अगेन बाय कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, वेन्स एंड देन अगेन वेना केवा. और ये प्रोसेस जो है ये रिपीट होता रहेगा. ये प्रोसेस जो है ये रिपीट होता रहेगा. और यहाँ आप देखोगे तो हार्ट जो है उसने 2 बार ब्लड रिसीव किया. एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सिमिलरली हार्ट ने ब्लड भी 2 बार पंप आउट किया. एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट किया टुवर्ड्स द लंग्स और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट किया टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स. तो क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो 2 बार ब्लड को रिसीव कर रहा है और 2 बार ब्लड पंप आउट कर रहा है, ह्यूमन हार्ट शोज व्हाट सर्कुलेशन? इट इज नोन एज व्हाट सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन. इट इज नोन एज व्हाट सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन. तो इस स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन से आप इजीली डबल सर्कुलेशन के बारे में भी अब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन. इट इज दैट हार्ट रिसीव्स ट्वाइस द ब्लड एंड इट आल्सो times and therefore the circulation is known as double circulation. क्योंकि ये जो राइट साइड का हार्ट है, ये जो राइट साइड का हार्ट है ये हमारा ब्लड कहाँ दे रहा है? लंग्स की तरफ. और ये जो लेफ्ट साइड का हार्ट है ये ब्लड कहाँ दे रहा है? टुवर्ड्स द बॉडी ऑर्गन्स. किसको दे रहा है? बॉडी ऑर्गन्स को. और जो राइट साइड का हार्ट है वो ब्लड किसको पंप आउट कर रहा है? लंग्स को. इस तरफ का हार्ट जो होता है राइट हार्ट इज नोन एज योर पल्मोनरी हार्ट और द सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. और ये जो लेफ्ट तरफ का हार्ट है तो लेफ्ट हार्ट ने ब्लड किसको पंप किया? पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स को. दिस साइड ऑफ हार्ट इज नोन एज योर सिस्टमिक हार्ट. दिस इज नोन एज योर सिस्टमिक हार्ट और द सर्कुलेशन इज नोन एज सिस्टमिक circulation or the circulation is known as systemic circulation. So is it clear what is pulmonary circulation and what is systemic circulation? जो right side का heart है वो कहाँ दे रहा है blood? lungs को. और left side का heart कहाँ दे रहा है? पूरे body parts को. इसीलिए जो right side का heart है उसको हम बोलते हैं pulmonary heart और जो left side का heart है उसको हम क्या बोलते हैं? systemic heart. It is known as what heart? Systemic. So I hope this is very much clear, double circulation and the working of heart. Any doubt? Any doubt? Okay. So
यहाँ पर आप देख सक रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि so here you are seeing it कि ये जो हार्ट जो ब्लड रिसीव कर रहा है स्पेशली फ्रॉम इंफीरियर वेना केवा, तो आप देखो पूरा का पूरा जो ब्लड है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहा है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहा है। और हमारी बॉडी को हमेशा कोई भी चीज क्या होती है, टुवर्ड्स दी है। तो यहाँ पे जब ये ब्लड ऐसे ये रिसीव कर रहा है तो ऑब्वियसली ये वापस भी तो जा सकता है, क्योंकि वर्किंग कैसे होती है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पे ब्लड कैसे आ रहा है, खासकर जब इंफीरियर वेना केवा से आ रहा है तो पूरा नीचे से लेके आ रहा है और हार्ट को दे रहा है, सो दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए कि ब्लड जैसे आया है वो वापस ना चला जाए, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, वॉल्व्स। उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या होते हैं, वॉल्व्स। सो व्हाट आर वॉल्व्स? वॉल्व्स वो होते हैं जो क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो वॉल्व्स क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो सपोज ब्लड जब एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ रहा है, तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये वो ज़्यादा, उनके जो वॉल्स होते हैं इट इज़ मोर थिक, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल। स्पेशली कौन सा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो दिस इज द लार्जेस्ट चेम्बर, और जो वॉल होती है थिकनेस में वो सबसे ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स को देना है। किसको देना है, पूरे बॉडी पार्ट्स को। तो आप सोचो कि उसका कॉन्ट्रैक्शन ऑरिकल से कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको पूरा का पूरा ब्लड पंप करना है। ऑरिकल्स को तो ब्लड रिसीव करना है, लेकिन वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना है। तो इसीलिए इसका जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑरिकल से कई ज़्यादा होता है। तो जब राइट ऑरिकल ने ब्लड रिसीव करके राइट वेंट्रिकल को दिया और लेफ्ट ऑरिकल ने रिसीव करके लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया ब्लड, तो जब वेंट्रिकल्स पंप होंगे तो देर इज अ चांस कि यहाँ से यहाँ जो ब्लड है वो क्या हो जाए, बैक फ्लो हो जाए। इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होते हैं, वॉल्व्स। तो एक वॉल्व जैसे मैंने आपको बताया यहाँ होता है इंफीरियर वेना केवा में, ठीक है। सिमिलरली एक वॉल्व हमारा यहाँ कोरोनरी साइनस में होता है, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो वॉल्व होता है दैट इज मेड अप ऑफ मस्कुलर फ्लैप्स, और इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स है उनके बीच में 2 मस्कुलर फ्लैप होते हैं एक वॉल्व में, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, और इट इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। तो राइट साइड में कौन सा वॉल्व होता है, राइट साइड जो है राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वी हैव ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वी हैव मिट्रल वॉल्व टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। Similarly, we have semi-lunar valves, that is semi, half lunar, moon, half moon shaped valves भी होते हैं। ये यहाँ पे you can see in this diagram, ये देखिए half moon shaped semi-lunar valves, can you see, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वी हैव ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में वी हैव बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। अब ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द आयोटा।
तो आप सोचो जब ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो फिर से बैक फ्लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो है आपका राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो है, तो ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी इज गार्डेड बाय व्हाट वॉल्व? वॉल्व। एंड आयोटा इज गार्डेड बाय व्हाट वॉल्व? आयोटिक वॉल्व। आयोटा किससे गार्डेड होता है? आयोटिक वॉल्व से। एंड दीज बोथ वॉल्व्स आर हाफ मून इन शेप, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेमील्यूनर वॉल्व्स। सो हियर यू कैन सी द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग कौन सी है? टुवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल की किसकी है? टुवर्ड्स द aorta. They are provided with semilunar valves, that is half moon shaped valves. और यही semilunar valves दो टाइप की हैं, that is your pulmonary valve जो pulmonary artery की valve है, and second is aortic valve जो aorta की valve है। जो किसकी valve है? aorta की valve है। Understood? So all these valves main function क्या है? It allows the flow of blood only in one direction, that is from atria to ventricles and from ventricles to pulmonary artery or aorta. From ventricles to pulmonary artery or aorta. तो ये valve का function क्या है? ये valve का ये function है कि वो blood को सिर्फ atrium से ventricle allow कर रहा है वाया ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या अयोटा में अलाउ कर रहा है, ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। कभी भी ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया नहीं जाएगा, या कभी भी पल्मोनरी आर्टरी से वेंट्रिकल या अयोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं आएगा, क्योंकि वो उसी चीज को क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। तो वॉल्व जो है वो ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करा रहा है, दैट इज एट्रिया टू वेंट्रिकल्स एंड देन फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी आर्टरी, प्रिवेंटिंग एनी बैकवर्ड फ्लो, प्रिवेंटिंग एनी बैकवर्ड फ्लो। तो हमने यहाँ पे देखे कि हार्ट में टोटल कितनी वॉल्व्स हैं? एक वॉल्व है इंफीरियर वेना केवा की। It is not discussed, it is not in your course if you are a NEET aspirant or if you are 11th student, but जो inferior vena cava की जो valve होती है, that is known as Evachian valve. Then we have a valve in coronary sinus, that is known as your Thebetian valve. Superior vena cava, सुपीरियर वेना केवा में कोई वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि बैकफ्लो होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्शन ऐसा है। एंड सिमिलरली पल्मोनरी वेन्स का भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द ग्रेविटी है, तो बैकफ्लो होने का चांस नहीं है, इसलिए पल्मोनरी वेन्स में भी कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती है। तो वॉल्व्स कहाँ कहाँ है? द फर्स्ट वॉल्व इज प्रेजेंट इन वी हैव valves in inferior vena cava, we have valve in coronary sinus, we have a tricuspid valve, we have a bicuspid valve, we have a pulmonary valve, and we have a aortic valve. This pulmonary and aortic valve are half moon shaped, known as semilunar valves. So total 6 valves are present in the heart to prevent the backflow of blood. सुपीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स में कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती हैं, बिकॉज उनका ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ग्रेविटी ही है, तो बैक फ्लो होने का चांस नहीं है। आई होप इज इट क्लियर? वॉल्व्स का पोर्शन आपको क्लियर है? वॉल्व इज क्लियर? Okay, so now let's move forward to how this heart works basically. ठीक है? So
आपको मैंने बताया है कि जो एंटायर हार्ट है वो किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? हार्ट इज अ मस्कुलर. आप पहला पॉइंट यही पढ़ते हो कि हार्ट इज अ मस्कुलर चेम्बर्ड ऑर्गन. सो इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. और मैंने आपको ये पॉइंट भी अर्लियर डिस्कस किया है कि जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती हैं वो थिकर होती हैं एट्रिया से, क्योंकि वेंट्रिकल्स को पूरे बॉडी करना है. ठीक है. एंड कुछ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू that is distributed in the heart. Now what are these nodal tissues? यही हमको देखना है. This is the only topic, that is your nodal tissues. Nodal tissues. Now before moving on to nodal tissue, I must give a brief account कि there are two kinds of heart. One is your neurogenic heart and other one is myogenic heart. कौन कौन से heart होते हैं? न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक. नाम से समझ में आ रहा है, जेनिक का मतलब कोई भी चीज़ का ओरिजिन होना. तो आपको पता है कि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, और उसके लिए डेफिनेटली बॉडी को, अगर मैं ये हाथ उठा भी रही हूँ तो हमको एक इम्पल्स चाहिए. मुझे लिखने के लिए एक इम्पल्स चाहिए. जैसे मैं अभी कुछ बोल रही हूँ तो इसके लिए सारा इम्पल्स कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द ब्रेन. तो जनरली जो बॉडी की वर्किंग है वो कौन करवाता है? ब्रेन. तो जब हार्ट को पंप करना है ब्लड, तो दो तरीके से हो सकता है. हार्ट दो तरीके से चल सकता है, या तो कहाँ से मिले? नर्व्स से मिले, दैट इज न्यूरोजेनिक. और दूसरा, हार्ट खुद एक इम्पल्स क्रिएट कर सकता है, और हार्ट क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है तो इम्पल्स को हम क्या बोलते हैं? मायोजेनिक. Breaks with some few exceptions. The heart is neurogenic, जिसमें इम्पल्स जो हार्ट को पंपिंग के लिए मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ब्रेन से मिलती है, नर्व से मिलती है. लेकिन जो ह्यूमन हार्ट होता है वो क्या होता है? मायोजेनिक. मतलब अपना खुद का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मोड है वो कौन डिसाइड करता है? हार्ट इटसेल्फ. जो इम्पल्स क्रिएट होता है वो हार्ट में ही इटसेल्फ क्रिएट होता है, उसका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं होता है. वो सिर्फ उससे कंट्रोल हो सकता है. मतलब अगर आप दौड़ रहे हो, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो किसके, वो कौन करेगा? न्यूरल कंट्रोल. दैट इज अ कंट्रोल. लेकिन हार्ट बीट ओरिजिनेट होना वो ये नहीं कर रहा है, वो ब्रेन नहीं कर रहा है, वो हार्ट खुद कर रहा है. इसीलिए ह्यूमन हार्ट को हम क्या बोलते हैं? मायोजेनिक. और वो पार्ट हार्ट का जो इस इम्पल्स को क्रिएट कर रहा है, दैट इज व्हाट टिश्यूज, देज आर नोन एज नोडल टिश्यूज, बिकॉज ये नोड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. और ये नोडल टिश्यूज भी खुद किससे बने हुए हैं? मसल से. ये खुद किससे बने हुए हैं? कार्डियक मस्क्यूलेचर से. तो जो पहला नोडल टिश्यू हार्ट में लोकेटेड होता है, दैट इज योर साइनो एट्रियल नोड. दैट इज योर साइनो एट्रियल नोड. कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है. दिस इज योर साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम बोलते हैं SAN. तो आई होप दिस इज क्लियर कि ह्यूमन हार्ट कैसा हार्ट है? ह्यूमन हार्ट इज अ मायोजेनिक हार्ट. It is under the control of nerves for increasing the heartbeat or for decreasing the heartbeat. But origination कहाँ से हो रहा है? खुद हार्ट से हो रहा है. इसलिए ह्यूमन हार्ट को हम क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट. और जो इम्पल्स का ओरिजिनेशन होता है, दैट इज फ्रॉम साइनोएट्रियल नोड. This sinoatrial node is nothing but it is a muscular tissue. It is a पैच ऑफ मस्कुलर टिश्यू. तो कहाँ लोकेटेड होता है? देखो मैंने कहाँ बनाया है? राइट एट्रियम के कॉर्नर में. कौन से कॉर्नर में? राइट कॉर्नर में. दिस इज योर राइट साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड. आई होप लेफ्ट का आपको फंडा पता है कि हम इससे इस तरीके से करते हैं. ठीक है. सो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. तो ये कहाँ लोकेटेड है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. और यहाँ से ही ये जो साइनोएट्रियल नोड है, यही इम्पल्स बनाता है
इसीलिए SAN को हम क्या बोलते हैं? SAN इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट, क्योंकि ये हमारी बीट का पेस बना रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। ये ऐसे नोड से जो इम्पल्स है वो कहाँ जाएगा? यहाँ। सो दिस सेकेंड nodal tissue is known as AVN, that is atrioventricular node, AVN that is atrioventricular node। और अब देखिए ये कहाँ लोकेटेड है? ये भी राइट एट्रियम में लोकेटेड है, ऑन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ये राइट एट्रियम का राइट साइड है, ये राइट एट्रियम का लेफ्ट साइड है, तो SAN इज लोकेटेड ऑन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, दिस इज लोकेटेड इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। तो ऐसे नोड से AV नोड तक इम्पल्स कैसे आएगा? बाय इंटरनोडल पाथवे, बाय इंटरनोडल पाथवे। सो दिस इज योर इंटरनोडल पाथवे। सो ऐसे नोड ने इम्पल्स को जनरेट किया, नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो ऐसे नोड जैसे इम्पल्स देगा, ऑरिकल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और ये इम्पल्स वाया इंटरनोडल पाथवे कहाँ आ जाएगा? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में। कहाँ आ जाएगा? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में। एंड दिस एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज नोन एज, अब ये पेस को सेट करके रखता है, सो दिस इज नोन एज योर पेस सेटर of heart, known as pace setter of heart. Now from this atrioventricular node अब कुछ नोडल फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे। ये यहाँ पर, लेट्स चूज अ डिफरेंट कलर फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ये यहाँ से ये नोडल फाइबर्स क्रिएट होते हैं, विच इज नोन एज योर AV बंडल, नोन एज योर AV बंडल। और ये AV बंडल जो है ये इस तरीके से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की तरफ जाएंगे। सो दिस इज योर राइट AVN एंड दिस इज योर लेफ्ट AVN, ठीक है। तो ऑरिकल से अब इम्पल्स को कहाँ जाना है? वेंट्रिकल्स की तरफ। तो वो कैसे जाएगा? बाई AV बंडल। सो दिस इज योर राइट AV बंडल, दिस इज योर लेफ्ट AV बंडल। अब ये बहुत थिक वॉल्स हैं, तो इम्पल्स को पूरे वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स तक भी पहुंचाना है। तो AV बंडल से ये इम्पल्स टुवर्ड्स द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स कैसे पहुंचेंगे? बाय पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो देयर इज अ AV बंडल। AV बंडल कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इट पास थ्रू AV सेप्टम टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और इमीडिएटली डिवाइड हो जाता है राइट साइड और लेफ्ट साइड में। यहाँ से वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स तक इम्पल्स कौन पहुँचाता है? पुरकिंजे फाइबर्स। दीज आर माइन्यूट फाइबर्स जो वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर में आपको दिखेंगे। एंड ये पूरी एक सप्लाई हो गई। नाउ दिस राइट AV बंडल with right Purkinje fibers are known as right bundle of His, and left AV bundle with left Purkinje fibers are known as left bundle of His। तो जो AVN है, मतलब this AV bundle with the Purkinje fibers is known as what? बंडल ऑफ हिस। तो ये जो राइट AV बंडल है विथ राइट पुरकिंजे फाइबर्स इज नोन एज राइट बंडल ऑफ हिस, एंड द लेफ्ट AV बंडल with left Purkinje fibers is known as left bundle of His. So these fibers along with right and left bundles are known as what? Bundle of His. तो ये जो bundle of His है वो किसी से भी नहीं बल्कि AV bundle और Purkinje fibers से बना है. So here this is the diagram given in the NCERT. So here you can see, एक बार हम फिर से देखते हैं.
मैंने आपको बताया कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, इट इज़ मायोजेनिक इटसेल्फ, मायोजेनिक होता है, जो अपने इम्पल्स खुद जनरेट करता है। तो इम्पल्स का जनरेशन कहाँ से होता है, एसए नोड से। एसए नोड आप देख सकते हो यहाँ लोकेटेड है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। वाया इंटरनोडल पाथवे ये इम्पल्स कहाँ पहुँचेगा, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जो कहाँ लोकेटेड है, आपका लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल। यहाँ से आपका एवी बंडल ओरिजिनेट हो रहा है, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को क्रॉस करेगा और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, राइट एवी बंडल एंड लेफ्ट एवी बंडल, राइट एवी बंडल एंड लेफ्ट एवी बंडल। एंड यहाँ से आपके छोटे छोटे फाइबर्स जाएंगे, दोज आर नोन एज योर पुरकिंजे फाइबर्स, एंड दिस राइट एवी बंडल विथ राइट पुरकिंजे फाइबर्स आर नोन एज bundle of right bundle of His, and this left AV bundle with left Purkinje fibers are known as left bundle of His. अब एक चीज आप इस डायग्राम में नोटिस करेंगे, ये कैन यू सी दिस, और इसको क्या लेबल किया गया है, कॉर्डा टेंडिने। क्या लेबल किया गया है, कॉर्डा टेंडिने। दिस हैज बीन लेबल्ड एज कॉर्डा टेंडिने। तो आप यहाँ देखोगे ये जो है, दीज आर दी पैपिलरी मसल्स ऑफ वेंट्रिकल। ये जो मैंने अभी बनाया, दीज आर व्हाट, पैपिलरी मसल्स ऑफ वेंट्रिकल्स। और ये क्या है, वॉल्व है। ये क्या है, वॉल्व है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ये वॉल्व है, ये पैपिलरी मसल्स हैं हार्ट के। और ये आपको वाइट एरिया दिखेगा, आप एनसीईआरटी में भी इस डायग्राम को जाके देख सकते हो, ये वाइट फाइबर्स दिख रहे हैं। These are what, कॉर्डा टेंडिने। These are what, कॉर्डा टेंडिने। तो कॉर्डा टेंडिने अगर आप देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, फ्रॉम वॉल्व, फ्रॉम ट्राइकस्पिड वॉल्व और फ्रॉम बाइकस्पिड वॉल्व टू पैपिलरी मसल्स, टू पैपिलरी मसल्स। तो अब इसका फंक्शन क्या है, मैंने आपको बताया कि वॉल्व जो है वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे हैं। पर आप सोचो कि जब राइट वेंट्रिकल जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्व ऐसा है डायरेक्शन में, वो उस प्रेशर से ऐसा ना हो जाए, खुल ना जाए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेंट्रिकल्स अपने वॉल्स के साथ उसको क्या करता है, अटैच करके रखता है। तो ये जो वेंट्रिकल्स की जो पैपिलरी मसल्स है, ये जो वेंट्रिकल्स की पैपिलरी मसल्स है, उससे ये वॉल्व क्या है, कनेक्टेड है, ताकि ये वॉल्व वेंट्रिकल के प्रेशर से ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन ओपन ना हो जाए। तो ये जो टेंडिनस लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन दी पैपिलरी मसल्स ऑफ वेंट्रिकल्स एंड दी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व टू प्रिवेंट दी वॉल्व टू ओपन इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन एंड टू प्रिवेंट दी। बाकी सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था, बट कॉर्डा टेंडिने जो है वो एनसीईआरटी में सिर्फ लेबलिंग में दिया है, बट उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। इसलिए इस पार्ट को मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये जो कॉर्डा टेंडिने है वो एक्चुअली है क्या, बिकॉज नो वेयर देर इज अ डिस्क्रिप्शन गिवन। सो दिस इज अ टेंडिनस स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द पैपिलरी मसल्स एंड टू प्रिवेंट द वॉल्व direction and to prevent the backflow of blood. So I hope this is clear that impulse is generated in SA node, then to AV node, then to AV bundle, then to Purkinje fibers, and the AV bundle with Purkinje fibers is known as what? Bundle of His. तो मैंने आपको बताया कि ये जो नोडल मस्क्यूलेचर है ये अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट कर सकते हैं, ये अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए हार्ट को हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिक, एंड इट इज़ व्हाट, ऑटो एक्साइटेबल। इट इज़ नोन एज व्हाट, मायोजेनिक हार्ट, एंड इट इज़ व्हाट, ऑटो एक्साइटेबल, क्योंकि ये अपना एक्साइटेशन खुद क्रिएट कर रहा है। और कितनी बार क्रिएट करता है पर मिनट, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। मतलब एसए नोड कितनी बार इम्पल्स जनरेट कर रहा है, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, एंड दिस
इम्पल्स जनरेशन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? हार्ट बीट। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हार्ट हमारा कितनी बार बीट करता है? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। और ये पूरा जनरेशन कौन कर रहा है? ऐसे नोड, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? पेस मेकर ऑफ हार्ट, जो हार्ट का पेस को बनाएगा, इम्पल्स जनरेट करेगा कितनी बार? 70 to 75 टाइम्स, देयरफॉर इट इज नोन एज पेस मेकर। तो हार्ट बीट भी हमारी कितनी हो जाती है? 70 to 75 टाइम्स, ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स पर मिनट। So let's do a very quick revision. इसके बाद कार्डियक साइकिल भी है, लेकिन आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। कार्डियक साइकिल आई एम गोइंग टू explain it in the next lecture, that is part 2. This is human heart. Next lecture I'll be dealing with the cardiac cycle. This is your part 2, body fluids and circulation ka chapter. So let's do a quick revision. We have a human heart. We have a human heart. 4 chambers हैं. Right auricle, left auricle, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। कवरिंग्स की बात करेंगे, सो वी हैव हार्ट के लाइनिंग्स की बात करेंगे, तो सबसे अंदर एंडोकार्डियम, फिर उसके बाद मायोकार्डियम, उसके बाद एपिकार्डियम, दिस इज योर विसरल पेरिकार्डियम, इसके बाद पैराइटल पेरिकार्डियम, और इसके बाद फाइब्रस पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। एक्सप्लेनेशन के लिए आप अर्लियर पार्ट में जा सकते हैं। फाइन, सो दिस इज दी लाइनिंग्स एंड वॉल्स। राइट ऑरिकल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस क्या रिसीव कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज गोइंग टू राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? टू पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? लंग्स, और लंग्स से ये CO2 आप क्या कर दोगे? एक्सेल आउट कर दोगे, और लंग से आपको इंटरनली क्या आया? ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये कहाँ आएगा? टू लेफ्ट ऑरिकल वाया 4 पल्मोनरी वेन्स, वाया 4 पल्मोनरी वेन्स। फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल द ब्लड विल मूव टू लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम हियर there will be formation of what? Aorta. There is formation of what? Aorta. Aorta जो है वो पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करेगा। Aorta divided into arteries, arterioles, capillaries. Capillaries से oxygenated blood, capillaries से oxygenated blood आपका कहाँ जाएगा? To body parts, और यहाँ से आप क्या रिसीव करोगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेके कौन आएगा? कैपिलरीज। कैपिलरीज मर्ज होंगे टू वेन्यूल्स, वेन्यूल्स मर्ज होंगे टू वेन्स, और वेन्स मर्ज होंगे टू वेना केवास। वेन्स मर्ज होंगे किसमें? टू वेना केवा, बिकॉज राइट साइड ऑफ हार्ट ब्लड लंग्स को दे रहा है, so that is pulmonary heart. Left heart organs को दे रहा है, so that is systemic heart. Then valves, यहाँ पर in between the right auricle and right atrium there is tricuspid valve, and in between left auricle and left ventricle 2 muscular flap होते हैं, that is bicuspid valve और mitral valve. इसको वॉल्व की ज़रूरत नहीं है। सुपीरियर वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन्स डू नॉट नीड वॉल्व, बिकॉज ब्लड जो है वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी फ्लो कर रहा है। पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ
पल्मोनरी वॉल्व होती है, आर्क ऑफ एओर्टा के लिए aortic valve होती है, both are half moon shape, therefore they are known as semilunar valve. Both are known as semilunar valve. Heart is myogenic in nature. Heart is myogenic in nature. Impulse खुद generate करेगा. कौन impulse generate करेगा? SA node. SA node से impulse कहाँ आएगा? AV node. AV node से कहाँ जाएगा? AV bundle. AV bundle से कहाँ जाएगा? Purkinje fibers. And AV bundle with Purkinje fibers are known as bundle of His. Then valves, ये आपका papillary muscles है हार्ट का. valves और papillary muscles के बीच में valve के back flow को रोकने के लिए, valve के opposite direction में open को prevent होने के लिए there is a structure known as chorda tendineae. And because the impulse which is generated by SA node is 70 to 75 times per minute, this itself gives the heartbeat. Now, how this impulse generation helps in contraction and relaxation of heart, that is systole and diastole of a heart. And what is cardiac cycle? We are going to read it in next lecture. Till then, a very thank you for watching this lecture and see you soon for the cardiac cycle lecture. Thank you. This is Gumbar from Premier Academy, Bilaspur, IIT JEE, NEET and Foundation Academy.